today's topic is indicators of health. So ये आपका थर्ड और आई थिंक फोर्थ चैप्टर है. थर्ड चैप्टर है. पहले राइट टू हेल्थ के बाद ये फोर्थ चैप्टर पढ़ता है. तो फर्स्ट इज व्हाई वी रीड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, बिकॉज इन एपिडेमियोलॉजी जो आपके इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ है दे आर एसेंशियल टूल. सो दे वर्क एज ए टूल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन. Okay, so from these tools we have to measure, or we can measure population of health. Health indicator give a snapshot of the health status of a group. They help to answer the question like how long are people living, so how long, this is life expectancy. Then what are the major cause of death of the illness, so this is mortality and morbidity. Okay, so then second, what indicators do to identify health problems. Okay, so indicators highlighted the health issues that require attention. For example, life mortality rate, or like HIV infection incidence. Okay, and to set the priorities and allocate our resources. So through this indicator you can focus funding and program where they are most needed, plan your intervention for highly burdened disease like heart disease and diabetes, like NCDs. Okay, and to monitor trends over time. Like जो indicators हैं, they allow for tracking changes in health over time. Are vaccination rates improving? Is the prevalence of smoking going down? And this helps evaluate progress and guide future actions. ठीक है, and through this indicators you can compare between population. Like health indicators enables comparisons, okay, between regions, countries, demographic group. It's to identify health inequality and disparity. Through these indicators you can evaluate public health interventions, like did cancer screening reduce late stage diagnosis, or did an awareness campaign reduce teen pregnancies. So through these indicators you can find the answers in your epidemiology. Okay, so indicator of health, as I already told you, indicator of health are measurable characteristics or statistics. Excuse me. Okay, so indicators of health are measurable characteristics or statistics that reflect the health status of a population or an individual. They provide insight into various aspects of health and well-being, helping to assess the effectiveness of health intervention and policies, as I already told you. Okay, so basically health indicator is an epidemiologically very crucial for assessing health, guiding decision and improving outcome at the population level. Okay, and they are the foundation for evidence-based public health practices. Okay, excuse me, that's why I told please join early. Okay, so what are the indicators? It's mortality indicator, morbidity indicator, disability indicator, nutritional status indicator, social and mental health indicators, health care delivery indicators, and utilization indicators. Okay. Okay. Now there will be one figure in your, in my right side, health status of individual, family and community. Okay, so you can see there will be a physical environment, some surrounding determinants, that is physical environment. Okay, and ecology, मतलब air, water and quality of population, we जो हमने पहले ही पढ़ा था. Then social economic environment, that is, what is social economic environment? Your income, your education, your employment, social status, access to resources, है ना. Then lifestyle behavior and risk factor. So lifestyle behavior and risk factor is your diet, your exercise, smoking and alcohol use, stress, personal choices. Okay, then genetic endowment, यानी कि inherited traits and predisposition to certain disease, जैसे कि मैंने पहले बताया था NCDs, most of the NCDs are genetic. Okay, then health system, है ना. health system मतलब access to quality of health care, coverage, infrastructure, services, है ना, like that.
Okay. Now, next one is question mark. Can anyone answer this question mark? Any one of you guys? एनवायरमेंट आ गया, सोशो इकोनॉमिक आ गया, लाइफस्टाइल आ गया, जेनेटिक आ गया, हेल्थ सिस्टम आ गया. हम इस डायग्राम में क्या मिस कर रहे हैं और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? कोई ट्राई करना चाहेगा? प्लीज आंसर करिए. एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये फैक्टर. Okay, so this is the cultural environment, you can say, or the social support network, or both. So it refers to your culture, belief, traditions, family, community, and support network. है ना? जो social networks होते हैं. Now there will be one outer layer. This outer layer, public policy. Outer oval. So the outermost layer of public policy representing the overarching influence of laws, regulation, and the government action on all these determinants and shapes like health system, environment regulation, social policy, education, housing welfare, and behavior incentive. So this is the diagram shows health is a multifactorial. और ये जो indicators हैं ये इन्हीं का एक स्टैटिकल डेटा हमें देते हैं जिससे कि हम आगे के लिए प्रिपेयर होते हैं, अपनी इंटरवेंशंस प्लान करते हैं, आगे अपनी रिसर्च प्लान करते हैं. ओके, नाउ सो फर्स्ट इज मोर्टेलिटी इंडिकेटर. सो देयर इज अ वेराइटीज ऑफ मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड दिस इंक्लूड्स क्रूड डेथ रेट, that is CDR, infant mortality rate IMR, maternal mortality rate MMR, child mortality rate less than 5 mortality, and the disease specific mortality rate. ठीक है. So mortality rate is measures that quantify the frequency of death in a population, and increase or decrease in these rates will determining the change trends of the health status and the comparative health status of the community. ओके, एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल या पब्लिक हेल्थ में हम लोग हमेशा कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं. ये किसी भी पेशेंट स्पेसिफिक हम अप्रोच नहीं रखते, हम वो अप्रोच रखते हैं जो हमारी पॉपुलेशन या हमारे जो और भी इंडिविजुअल्स हैं सबके लिए इक्वल हो. ओके, सो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन दीज रेट्स विल डिटरमाइनिंग चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ स्टेटस and the comparative health status of community. All these indicators are valid, partially, reliably, and sensitive. ठीक है. So some are very sensitive and specific to the situation. कैसे? जैसे मैंने बात की थी, infant mortality rate is the most sensitive indicator of health, whereas the maternal mortality rate is a sensitive indicator of obstetrical value. Then morbidity. So morbidity basically disease आप कह सकते हो. So metrics that assess the prevalence and incidence of disease and health condition within a population, that reflecting the burden of illness or burden of disease of particular disease. So these are the morbidity indicators. Okay. Now disability indicators. So it measures and evaluate the impact of health condition. Okay, and an individual's ability to perform daily activity and participate fully in society. So ये सारे indicators के अपने अपने formulas होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, उसी से आप मैंने जैसे कि आगे पढ़ा था ना, दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज होंगे आपके पास. ठीक है. न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, दैट मेट्रिक्स दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ, इंडिकेटिंग द एडुकेसी और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, अगेन पॉपुलेशन की बात करेंगे ऑलवेज. इसमें किसी पर्टिकुलर हम किसी एक पेशेंट की बात नहीं करेंगे, या तो वो नंबर ऑफ पूरा ग्रुप होगा पेशेंट्स का और इधर हमारी टोटल पॉपुलेशन. ओके, सो दिस इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर. ठीक है. सो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, सो इट इज अ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर. So 3 nutritional status indicators are considered important as indicator of health status. And क्या बोलते हैं पहले? Weight, height, mid-arm circumference for children, है ना? Anthropometric measurement of preschool children. Height, sometime height and sometime जब height school entry करते हैं तो उस समय height important होती है. दूसरा prevalence of low birth weight, like less than 2.5 kg.
ठीक है. सो फर्स्ट यू कैन से बॉडी कंपोजिशन में, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर में सबसे पहले आपका आ रहा है बॉडी कंपोनेंट, बॉडी कंपोजिशन. ठीक है, इसमें आपका आएगा BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, a measure of body fat based on height and weight. Thickness of fat tissue, skin fold measurement to assess fat stores, and arm circumference जो मैंने पहले ही बात की थी, used to assess the muscle and fat stores especially in children. And waist hip ratio, that is measures the fat distribution and risk of cardiovascular disease. ठीक है, सो दीज इंडिकेटर रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म एनर्जी बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल ट्रेंड. दैट्स व्हाई ये आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिकेटर के लॉन्ग टर्म वाले पार्ट में है. ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर. तो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर दीज रिफ्लेक्ट रीसेंट डाइटरी इनटेक और बिहेवियर, है ना, लाइक एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बैलेंस, नंबर ऑफ मील्स पर डे, ये भी इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एपेटाइट एंड रिफ्यूजल टू ईट. सो दीज आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग रिसेंट और ऑनगोइंग इशू विद फूड इनटेक, एपेटाइट और न्यूट्रिशनल रिलेटेड बिहेवियर. ओके, नाउ इमीडिएट, जिसमें हमें इमीडिएट जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज दीज रिफ्लेक्ट सब क्लिनिकल और अर्ली बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू पोर और इम्प्रूव न्यूट्रिशन, like biochemical parameter, albumin, है ना, pre-albumin. So blood protein used to assess nutritional and protein status. जैसे retinol binding proteins होते हैं that reflect vitamin A status. So basically vitamin A status, okay, and cholesterol, CRP, C-reactive protein. So they may indicate inflammation or other health condition related to the nutrition. Now in the intermediate, there will be a functional parameters, that cognitive status. Cognitive means mental and emotional well-being related to nutrition, like deficiency. Then autonomy in daily activities, like ability to carry out basic tasks, influenced by strength and nutrition. Anemia, it's very common, है ना, caused by iron deficiency or B12 deficiency. And pressure mobility. So this indicates between now social and mental indicators. Again, social and mental indicators are important. So it measures that assess the mental well-being and social condition affecting health outcome, reflecting the broader context of health. So these indicators, excuse me, and these indicators include your incidence and prevalence both. Okay, this social indicators. ठीक है, now healthcare delivery indicators. So healthcare delivery indicator, it is a matrix that evaluate the effectiveness, accessibility and quality of healthcare service provided to the population, like doctor nurse ratio, doctor पॉपुलेशन रेशियो, मतलब एक पॉपुलेशन लाइक 5000 की पॉपुलेशन में आपके पास कितने डॉक्टर हैं, कितने सेंटर्स हैं, और डॉक्टर आपके पास अगर 2 डॉक्टर है तो कितना आपका नर्स का रेशियो है. ठीक है, पॉपुलेशन पर हेल्थ या सब सेंटर, पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट. अगर आप में से कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहां पे वो देख सकते हैं कि पॉपुलेशन पर हेल्थ सब सेंटर क्वांटिफाई की जाती है. वैसे 5000 पे एक सब सेंटर होता है, बट अगर आप अर्बन की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन भी होती है. नाउ यूटिलाइजेशन रेट. ठीक है, सो यूटिलाइजेशन रेट इट इज रेफर्ड टू एज यूटिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, दैट इंडिकेट हाउ फ्रिक्वेंटली हेल्थ केयर सर्विसेज आर यूज्ड बाय पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू हेल्थ केयर एक्सेस बिहेवियर. Okay, like health policy indicator of quality of life, measurement of mortality. Okay, now indicator of quality of life. The quality of life is person is educated and has a job or proper earning resources, he will have a quality of life. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, mortality indicator में आप इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इंडिया पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैंने अलग स्लाइड बनाई है. कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं.
So first term पढ़ेंगे, mortality means death. ठीक है. So why mortality indicator is very important? टर्मिनोलॉजी में ओके. सो मोर्टैलिटी यानी कि आपका डेथ रिकॉर्ड्स या मोर्टैलिटी डेटा, इट्स अ वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू यूज इन एपिडेमियोलॉजी. इसको हम लोग डायरेक्टली जो भी कंट्रीज है या इंडिया है इसको कलेक्ट करते हैं, एंड जो भी अवेलेबल हमारे पास डेटा होता है उससे हमारे आगे पॉलिसीज बनती है. सो इट्स इजी टू एक्सेस एंड यूजुअली रिलायबल, विच मेक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्टडिंग हेल्थ एंड डिजीज पैटर्न इन अ पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई. ओके. सो कोई भी इंडिकेटर पढ़ने से पहले मैं आपको रेट, रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ना चाहूंगी. ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन की रेट क्या होता है, रेशियो, बिकॉज ये हम ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े होते हैं. रेट इवन 10th में आई गेस, है ना. सो रेट इज अ measure of an event. So rate are often used in epidemiology to describe the occurrence of disease. Okay, यानी कि number of event, population at risk into कितना, कैसे होगा इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे. If there are 50 cases of a disease in a population of 10,000 over 1 year, the rate would be 50 upon 10,000 into 1,000, तो 5 per cases. तो यानी कि आपका कितना आ गया, 1,000 इंडिविजुअल्स. ठीक है, 5 पर केसेस इन 1,000 इंडिविजुअल. तो इस तरह से हम रेट निकालते हैं, क्योंकि हम आगे मोर्टैलिटी रेट, रेशियो इस तरह से पढ़ेंगे, इसलिए मैं जस्ट आपको एक बार ये बता रही हूँ. दूसरा रेशियो. रेशियो आपको पता ही है, रेशियो इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. ठीक है, इफ देयर इज 30 मेल्स एंड 20 फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल्स वुड बी 30/20, यानी 1.5. This indicates that there are a 1.5 male for every female. ठीक है. Now proportion. Proportion मतलब एक पूरी थाली में से portion. ठीक है. A portion of a specific type of ratio that express the relationship of a part to the whole. So it indicated how many part of a whole are represented by a particular quantity. Okay, so for example, if there are 200 cases in a disease out of a population of 1,000, so the portion would be 200 upon 1,000, 0.2 and 20%. This means 20% of population has this a specific disease, or this is the portion, मतलब portion by whole. ठीक है. So this is very common definition. Now mortality indicators. So mortality indicator, these indicators focusing on death rate within a population. इसमें आप पढ़ेंगे आगे crude death rate, expectations of life, maternal mortality, infant mortality, child mortality rate, under 5 proportionate mortality rate, disease specific mortality and proportional mortality rate. Okay, so mortality data are relatively easy to obtain. So mortality data are relatively easy to obtain and in many countries. ठीक है, it's a reasonably accurate. Many countries have routine system of collecting mortality data each year for information on death, जो वो analyze करना चाहते हैं, and the resulting tabulation are made available by each government. Okay, so traditionally and universally, the most epidemiological study begin with mortality data, and mortality data are relatively easy to obtain, and in many ways have routine system for collecting data. Okay, each year information on death is analyzed and resulting tabulation are made available in each government. So mortality data जो है that provide the starting point of many epidemiological studies. In fact, they are major resource of epidemiologists. ठीक है. So इसमें आपका आता है first international death certificate, ये भी आप आगे पढ़ेंगे. So the basis of mortality data in the death certificate. So we first look at the depth certification of assertion of the frequency of disease in a population to ensure national and international compatibility. So it is a very necessary to have a uniform and standardized system of recording and classifying death. Okay, so international death certificate में दो तरह के होते हैं उसमें parts. That is part 1 that deal with the immediate cause and underlying
cause which started the whole recorded online. Or in part 2 is record any significantly associated disease that contribute to the death but did not directly lead to it. ओके सो ये 2 पार्ट जो है आपके इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट में होते हैं. ओके नाउ अगर हम इंडिया के डेथ सर्टिफिकेट की बात करें, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपको ये डेथ सर्टिफिकेट का एक कॉलम मतलब एक पैरा दिया हुआ है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ maternal mortality and infant mortality data to provide an alternative method of collecting data on death during pregnancy and infancy, a set of questions are added to the basic structure of international death certificate for use in India. ठीक है. तो इस तरह के डेथ सर्टिफिकेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लिमिटेशंस क्या है? सो जब भी हम मोर्टेलिटी डेटा लेते हैं तो उसमें होता है सबसे पहले इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ. इसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस होती है तो आप भी बता सकते हैं अपने साइड से अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो, है ना, पब्लिक हेल्थ में. सो लिमिटेशन ऑफ मोर्टेलिटी डेटा में इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ मतलब this is not an important in मतलब this is not an important in developed country but in India यहाँ पे important है because developing country में हम ऐसे consider नहीं कर सकते कि वो जो reporting है वो authenticate होगी और complete होगी. Lack of accuracy, so inaccuracy in the recording of age and cause of the practice of medical certification of that is not widespread. If it is does exist, the cause of death is often inaccurate, है ना, और इनकम्प्लीट ड्यू टू सच डिफिकल्टी एज लैक ऑफ डायग्नोस्टिक एविडेंस. ठीक है. अच्छा, एक सिंपल सी बात है, किसी को हार्ट अटैक आता है, हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक से उसका डेथ हुआ, बट उसका हार्ट अटैक क्या होगा? आप उसको पहले से कोई लॉन्ग टर्म बीमारी रही होगी ना, जिसके चलते उसको आगे जाके वो ज्यादा बड़ी और अटैक उसको हुआ, हार्ट अटैक हुआ. क्योंकि अगर आप हार्ट अटैक देखोगे तो हार्ट अटैक कैसे आता है? बेसिकली कोई ना कोई ब्लॉकेज है या एकदम से उसका बीपी राइज क्यों हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. ठीक है. तो इस तरह से बहुत टाइम में रिकॉर्डिंग उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती, इतनी एक्यूरेट रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं होती है. ठीक है. नाउ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा, तो दिस हैम्पर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरेटिबिलिटी. ठीक है. नाउ चूज अ सिंगल कॉज ऑफ डेथ. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोस्ट कंट्री जो है दे टैबुलेटेड मोर्टेलिटी डेटा ओनली अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ डेथ, है ना. द अदर डिजीज और रिस्क फैक्टर एंड कंडीशन विच कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट डेथ आर नॉट टैबुलेटेड एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर देयर बाय लॉस. तो हमें पता कैसे चलेगा कि पॉपुलेशन में किस वजह से डेथ ज्यादा हो रही है ना. क्योंकि अगर आप एकदम जो उनके डिजीज जो कॉज ऑफ डेथ है, अंडरलाइनिंग कॉज है, वो आपने जो देखा ही नहीं है, जो सिम्टम आया उससे उसकी डेथ हुई, उसी को रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है. तो चूजिंग अ सिंगल कॉज ऑफ डेथ. नाउ चेंजिंग like coding system or changing fashions in diagnosis may affect the validity. We also need uniform definition and nomenclature. ठीक है. ये जरूरी होता है. दूसरा, डिजीज विद low fatality, मतलब last but not the least, if a sickness such as mental illness, arthritis is linked to the low fatality rate, mortality status is essentially useless. ठीक है. लास्टली, मोर्टेलिटी स्टैटिक्स में हम लोग बहुत कम ही जज कर पाते हैं कि हाँ इस पेशेंट को कोई मेंटल डिसऑर्डर था या इसको कोई अर्थराइटिस, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि अर्थराइटिस में भी डेथ हो सकती है. एम आई राइट कि किसी की डेथ अर्थराइटिस से हो सकती है? एनीवन? क्या आप में से किसी ने ये सुना है कभी भी कि एक किसी भी पेशेंट की डेथ अर्थराइटिस से हुई है?
Anyone, please unmute yourself. आज तो किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया. नो मैम, अभी तक नहीं सुना है कि आर्थराइटिस की वजह से अंडरलाइनिंग जो रीजन है वो आर्थराइटिस रहा हो किसी भी डेथ के लिए. Yes, okay. At least आपने बोला, thank you so much. Arthritis itself is not a typical or a direct cause of death, है ना? But some are forms of arthritis like rheumatoid arthritis. So it's an autoimmune disease which causing inflammation in your system. ओके सो इससे क्या होता है कि लिम्फोमा हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी आपके डेथ हो सकती है. तो मतलब डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्ट हो सकता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, जिससे कि हार्ट अटैक आएगा, स्ट्रोक हो जाता है. ठीक है, ऑर्गन डैमेज होगा, लंग्स और किडनी कोई भी. ठीक है, या आप लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे हो आर्थराइटिस की, स्टेरॉइड या कोई भी चीजें, तो वो क्या करेंगे, इनसे भी आपका इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन. ठीक है. दूसरा, रिड्यूस मोबिलिटी. अगर आपकी मोबिलिटी रिड्यूस होती है तो लीड्स टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड क्लॉट हो गया, डेथ हो जाती है. ठीक है. सो जो RA पेशेंट होते, जो मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है कि उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो. ठीक है, लाइक उनमें 30 to 50% कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं, 20% मतलब अप्रॉक्स 10 to 20% इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, और 10% इनका लंग में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. तो हम लोग कभी भी नहीं सोचते, तो इसीलिए ये डिजीज जो होती है थोड़ा हम उस तरफ सोचते ही नहीं है कि यार मेंटल इलनेस से भी किसी की डेथ हो सकती है या आर्थराइटिस से भी, क्योंकि हमने कभी मतलब इतना ज्यादा किसी की डेथ होती है तो नहीं पूछा जाता, या हम लोग इतना नहीं सोचते हैं उस लेवल तक का. बट ये भी कॉज ऑफ डेथ होते हैं. सो while mortality data is essential for public health planning and intervention, its limitation is necessitate careful interpretation and the use of complementary data source to gain a comprehensive understanding of population health. So everything is important, but अगर वो accurate हो. ठीक है. Okay. Now यूज ऑफ मोर्टेलिटी डाटा. इतना हम लोग मोर्टेलिटी कर रहे हैं, आगे जाके हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, हमारे पेपर में आएगा. हम इसका यूज क्या है, ठीक है. तो मैंने पहले भी आपको इम्पोर्टेंस बताया था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग. इट हेल्प्स गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई मेजर कॉज ऑफ डेथ एंड फोकस ऑन एड्रेसिंग दोज इश्यूज विद एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज. पॉलिसी डेवलपमेंट, लाइक एक्यूरेट डाटा गाइड्स द क्रिएशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एम एट रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ, लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, है ना. देन रिसोर्स एलोकेशन, like mortality data help in distribution of resources like such as healthcare fund, है ना, to areas with higher death rate and a specific health issues. Then epidemiological research में help करता है. तो research use mortality data to study disease pattern, risk factor and trends in specific population, है ना. जो भी comparison होते हैं, अभी जब आप अपनी research लिखने बैठोगे, हम एक national और international comparison करते हैं. So it enables mortality data enables comparison of death and rate between country or region, helping to measure a nation's health status relatively to others. Or most important जो होता है, that is public awareness. So mortality data helps raise awareness about serious health issues, encouraging prevention effort and behavior changes. ठीक है. So in short, mortality data provide insight into health of a population and guide efforts to reduce preventable death. ठीक है. Okay. Now this is the mortality indicators. First है आपका क्रूड डेथ रेट. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो डेफिनेशंस आपको दी जा रही हैं या जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई जा रही है, अगर आपके पेपर में आती है तो आपको एज इट इज राइट करना होता है. ठीक है, एज इट इज लिखना होता है. सो फर्स्ट इज crude death rate, the simplest measure of mortality in the crude death rate, and it is defined as the number of death from all cause per 1000 estimated mid-year population in 1 year in a given place. Okay, so it is measures the rate at which death occur from various cause in a given population during a specific period. So the crude death rate आप कैसे calculate number of death during the year into 1000 upon mid-year population. Now tell me what is the mid-year population? Anyone?
हम लोग मिड ईयर पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग। नाम बता दो। कविता मैम। हाय कविता। यस कविता। मैम मिड ईयर पॉपुलेशन जो कि हम मई या जून के अप्रॉक्स जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है उनको जब मेजर करते हैं। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? I think it's a specific date, July 1st of a given year. Why July 1st? Ma'am, because they use it as a like for the baseline for calculating the specific demographics and. Okay, हम कौन सा सर्वे यूज करते हैं फॉर द पॉपुलेशन? जो हर 5 साल में होता है। मैम जो अभी शायद लेटेस्ट जनगणना क्या? हाँ यस, जनगणना हुई थी। कब हुई थी वो जनगणना लास्ट? 2000 मैम लास्ट 2020 में। आर यू श्योर? नॉट श्योर मैम। 2011 में क्या हुआ था? I'm not sure about it. Like maybe it can be a 2011, but like I'm not sure. Yes, it's NFHS सर्वे बोलते हैं ना। 2011 में सेंसस होता है इंडिया का, है ना? तो वो 2011 में हुआ था, नॉट 2020 में। हम कर ही नहीं पाए थे, है ना? सो ओके, तो ये बिल्कुल राइट है कि हमारी। आपका नाम जिन्होंने आंसर बोला? मयंक। मयंक, थैंक यू मयंक। सो 1 जुलाई तक जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट यूज ग्लोबली फॉर कंसिस्टेंसी इन डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जुलाई 1 तक जो हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन होती है वो काउंट होती है, और इसी को हम मिड ईयर पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन का सेंसस ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था लास्ट 2011 में, एंड अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो अभी हमारा एक ही सर्वे हुआ है पॉपुलेशन का, दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन थी, इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया। प्लीज डोंट कंफ्यूज, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू दिस क्रूड डेथ रेट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द क्रूड डेथ रेट समराइज द इफेक्ट ऑफ 2 फैक्टर। यहाँ पे क्या क्या समराइज हो रहे हैं? 2 फैक्टर। पहला पॉपुलेशन का कंपोजिशन, ठीक है, एंड दूसरा एज स्पेसिफिक डेथ रेट विच रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी बाय डाइंग। ठीक है, सो ये आपका क्रूड डेथ रेट है, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ओवर अ ईयर। तो ये इसका डेफिनेशन वो फॉर्मूला है, तो इसको हम एज इट इज ही पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका स्पेसिफिक डेथ रेट। अब यहाँ पे स्पेसिफिक है, दैट मीन्स समथिंग स्पेसिफिक इसमें हम लेंगे। सो व्हेन the analysis is planned to throw light on etiology, it is essential to specific death rate, है ना? Like cause and disease specific, example tuberculosis, cancer, accident। ठीक है, एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप, एग्जाम्पल एज स्पेसिफिक, है ना, जेंडर स्पेसिफिक या सेक्स स्पेसिफिक, है ना, सेक्स स्पेसिफिक एटसेट्रा, दो एज सेक्स बोथ स्पेसिफिक। ठीक है, तो रेट कैन ऑल्सो बी मेड स्पेसिफिकली फॉर मैनी अदर वेरिएबल्स। ठीक है, सो द रेट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मोर्टेलिटी पैटर्न रिलेटेड टू एज, जेंडर, है ना, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डेथ की बात कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन में से, कि किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज की वजह से जो हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं? आपका नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर इनटू 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, इनटू 1000। ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या होता है भाई? नाउ कैलेंडर ईयर बताओ मुझे। ये तो इतना इजी है मैम। कैलेंडर ईयर इज जनवरी टू दिसंबर। सिंपल, 12 मंथ ऑफ पीरियड, 365 डेज, है ना? तो दिस इज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, और दूसरा रेट कैन आल्सो बी स्पेसिफिकली फॉर अदर वेरिएबल्स लाइक इनकम, रिलीजन, रेस, हाउसिंग, है ना? स्पेसिफिक डेथ रेट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ग्रुप्स जो रिस्क में है फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, एंड दे परमिट कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट कॉज विद इन द सेम पॉपुलेशन। अब ये सारी चीजें ना पढ़ के आना, कल जो क्लास होगी पहले मैं एग्जाम्पल दूंगी, और उस एग्जाम्पल में आप लोग मुझे हेल्प करोगे कि ये क्रूड डेथ रेट बोल रहा है या फॉर्मूला क्या है उसका, या स्पेसिफिक डेथ रेट की बात हो रही। कल मैं सिनेरियोज लेकर आऊंगी।
ठीक है, तो आप प्लीज जाके ये पढ़ना, और कुछ नहीं समझ आएगा तो प्लीज वो सिनेरियोज में मुझसे पूछना, बिकॉज मैं पहले भी स्टूडेंट्स का सिनेरियोज शेयर करती थी और वहां पे उनको और इजीली वो ये इंडिकेटर्स याद कर पाते थे। ठीक है, नाउ केस फर्टेलिटी रेट। सो केस फर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ डिजीज। ठीक है, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ डेथ टू केसेस। Okay, so the time interval is not specified. The case fatality rate is typically used in acute infectious disease. Example, food poisoning, cholera, measles. ठीक है, total number of death due to particular disease into 100 total number of cases due to the same disease. ठीक है, मतलब फूड पॉइजनिंग के टोटल केस कितने थे, अगर टोटल केस 10 हैं तो उसमें से कितने केस थे जो कि जिनका डेथ हुआ, क्योंकि हम लोग मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैं मोर्टेलिटी की बात करूंगी, गर्म पानी, जब भी मैं मोर्टेलिटी की बात करूंगी तो वहां पे हम लोग डेथ की बात करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब आगे आप जो देखोगे दैट इज प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो proportional mortality rate, it is sometimes useful to know what proportion of total death are due to particular cause like cancer, and what proportion of death are occurring in a particular age group like above the age of 50। जब हम लोग कुछ proportion लेते हैं ना, जो मैंने आपको रेट रेशियो proportion पढ़ाया था, तो उस तरह से हम proportion लेते हैं तो उस तरह से हम लोग अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, proportion mortality from a specific disease like number of death from specific disease in a year into 100 and total death of all causes in that particular year। ठीक है, अब मानो हमें यहाँ पे NCDs में से सिर्फ हमें कैंसर का निकालना है डेथ का, तो हम लोग टोटल डेथ फ्रॉम NCDs लेंगे या उस ईयर में जो भी कॉज से टोटल डेथ हुई है, उसने पर्टिकुलर कैंसर से कौन सी डेथ हुई है, वेदर इट इज कोई भी कैंसर हो। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक कैंसर का निकालना है, फॉर एग्जांपल आप कह लो कि हमें निकालना है आपका ओरल कैंसर का, तो नीचे हम टोटल डेथ ऑफ ऑल कैंसर से लिखेंगे, कितने सारे कैंसर से कोई डेथ कितनी हुई है, उसमें से ओरल कैंसर से कितनी हुई है। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन जो हम निकालते हैं वो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। नाउ एक्सक्यूज मी, ओके, नाउ अंडर 5 proportionate mortality rate, number of deaths under 5 years of age in the given year upon total number of death during the same year। अब सेम वही है ना, 5 साल से छोटे बच्चों की कितनी डेथ हुई है और टोटल डेथ कितनी हुई है उसमें से निकालना है ना। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके आप अपने सिनेरियोज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट फॉर एज्ड 50 years एंड अबव, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ऑल एज ग्रुप लिखोगे ना, कि सारी एज ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, उसमें से जो 50 साल से ऊपर थे वो लोग कितने थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोर्टेलिटी जो इंडिकेटर्स है उनका यूज करते हैं। ठीक है, सो सर्वाइवल रेट, सो जो सर्वाइवल रेट है, इट इज द परसेंटेज ऑफ सर्वाइवर in a population that has been examined and observed for a certain amount of time, such as 5 years, such as patient. So it is a method of describing prognosis in a certain disease condition. So survival experience can be used as a yardstick for the assessment of standards of therapy. Okay, so survival period is usually जो होता है reckon from the date of diagnosis or the start of the treatment. फॉर एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 years, हमने किसी भी पेशेंट को सेम डायग्नोज किया था, ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन वो जो बीमारी है उससे कितने पेशेंट बचे, है ना। अभी तक हम लोग यहाँ पे अभी हम इसी की मोर्टेलिटी की बात कर रहे थे, नाउ हम यहाँ पे सर्वाइवल की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोज और ट्रीटेड, उसमें से पेशेंट जो डायग्नोज और ट्रीटेड हुए, जैसे हम लोग इसमें मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल या फिर हमारे कैंसर्स की हम लेते हैं, है ना, तो कितने पेशेंट को हमने डायग्नोज किया, ट्रीट किया, और उसके बाद कितने अलाइव है। ठीक है, किसी भी डिजीज का आप निकाल सकते हो, पर जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज लगती है कि नहीं भाई 5 साल के बाद डेथ होनी पॉसिबल है, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद वो बच सकता है, या कोई भी इंटरवेंशन जो आपने दी किसी भी हैबिट की वो ठीक हो सकता है, तो वो यहाँ पे आप अपनी स्टडी में, ये सारे जितने भी फॉर्मुलेज हैं ये सारे आप अपनी स्टडीज में यूज करोगे, जो भी आप आगे करोगे, अपनी स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, उसमें आप ये यूज करोगे। ठीक है,
Now, adjusted or standardized rate. So the crude death rate should not be used as comparison indicator when comparing the mortality rate of two groups with distinct age distribution. So this is due to the fact that rate can only be compared if the population upon which they are based can. So additionally, using a range of specific death rate is difficult. So age adjustment or age standardization is very important. ठीक है? So which eliminate the confusing इफेक्ट ऑफ सिवरल एज ग्रुप. कभी भी आप कोई भी एज ग्रुप लोगे जब आप रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने सब्सटेंस यूज या अब्यूज का आपने एक रिसर्च प्लान किया, जब तक आप एक स्टैंडर्डाइज एज ग्रुप नहीं रखोगे या स्टैंडर्डाइज रेट नहीं रखोगे तब तक आपकी जो रिसर्च है सक्सेसफुल नहीं हो सकती. ठीक है? तो यहाँ पे उसी एडजस्ट करने को बोला जा रहा है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज रेट लेके चलना पड़ता है. ठीक है? सो ये आपके मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं. इसके सिनेरियोज में आप सभी के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड कल करूंगी विद ऑल द सिनेरियोज. तो प्लीज इसको सब पढ़ के आएंगे और अभी कोई कंफ्यूजन है फिर भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं. Now, measurement of morbidity. ठीक है? So morbidity is defined as any departure which is subjective or objective from a state of physiological well-being. ठीक है? So measurement of morbidity refers to the assessment of incidence, prevalence and the burden of disease or health condition within a पॉपुलेशन. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मोर्बिडिटी मतलब आप इंसिडेंस और प्रेवलेंस और बर्डन ऑफ डिजीज की बात करेंगे. ठीक है? जहाँ पे हमारा मोर्टेलिटी आएगा वहां पे हम डेथ की बात करेंगे. ठीक है? सो द टर्म इज यूज टू इक्विवेलेंट टू सच टर्म्स एज सिकनेस बोल सकते हो आप इसे डेटा, सिकनेस डेटा, इलनेस डेटा, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है? द WHO के जो एक्सपर्ट कमिटी है ऑन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स नोटेड इन इट्स 6th रिपोर्ट दैट मोर्बिडिटी कुड बी मेजर्ड इन 3 टर्म्स यूनिट. ठीक है? 3 तरह से ये मेजर होती है. पहला है क्या? सिक इंडिविजुअल, पर्सन हु विल इल. ठीक है? कि कौन बीमार है. ठीक है? दूसरा जो हम इसमें यूज करेंगे यूनिट्स जो हम बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ डेथ की बात कर रहे थे, कितने में से कितने लोगों को कौन सी बीमारी हुई, उस बीमारी में से कितने लोगों का डेथ हुआ, कितने उस डेथ में एज स्पेसिफिक डेथ कितनी थी, मैटरनल डेथ कितनी थी, इन्फेंट डेथ कितनी थी, अंडर 5 कितने थे. ठीक है? ये सारे सिर्फ डेथ की बात हो रही थी और सफरिंग की. नाउ यहाँ पे हम लोग अब करेंगे सिकनेस की बात करेंगे हम लोग. ठीक है? जिसको जो इल है तो जो पर्सन है जो बीमार है उसकी बात करेंगे. सो द इलनेस से हमारा द सिकनेस से मतलब इलनेस एपिसोड या पीरियड, वो कितने टाइम के लिए बीमार है. सो दैट दीज पीपल हैव गॉन थ्रू. ओके? एंड द लेंथ ऑफ द डिजीज, द ड्यूरेशन. तो लेंथ हमारी डेज में हो सकती है, वीक्स में हो सकती है और कैसे वीक्स में, डेज में, मंथ में भी हो सकती है. ठीक है? सो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मोर्बिडिटी आर कॉमनली मेजर्ड बाय मोर्बिडिटी रेट और मोर्बिडिटी रेशियो, नेमली फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, ड्यूरेशन देख रहे हैं, सिवियरिटी देख रहे हैं. ठीक है? सो मोर्बिडिटी में हम क्या करेंगे? डिजीज फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे बाय इंसिडेंस, बाय प्रेवलेंस रेट एंड द एवरेज ड्यूरेशन पर केस और द डिसेबिलिटी रेट विच कैन बी द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसेबिलिटी पर पर्सन में सर्व एज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. ठीक है? कि वो कितने टाइम तक कोई भी इंडिविजुअल उस सिकनेस में रहा. ठीक है? कितने टाइम तक गो थ्रू हुआ, कितने पीरियड थे, कितने एपिसोड्स थे, है ना, डेज थे, वीक थे, मंथ थे, ये सब हम लोग मोर्बिडिटी में पढ़ेंगे. सो मोर्बिडिटी का जो डाटा है which track the occurrence and spread of disease in a population and it is essential for understanding the health challenges faced by the community. कि आप देखिए कि आपकी कम्युनिटी में कितने सारे लोगों को कितने अलग तरह की डिजीज होती हैं और वो क्या हेल्थ चैलेंजेस अभी मतलब उनको फेस करने पड़ रहे हैं. ठीक है? सो जो मोर्बिडिटी का जो डेटा है दैट डिस्क्राइबिंग द डिजीज लोड. ठीक है? जो आपका डेटा है मोर्बिडिटी का वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है डिजीज लोड. सो मोर्बिडिटी डेटा शोज हाउ वाइड स्प्रेड ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई विच डिजीज आर मोस्ट कॉमन. सो दिस इंफॉर्मेशन
हेल्प्स सेट द हेल्थ प्रायोरिटीज। अगर आपको पता रहेगा कि आप जैसे अभी सीजन है डेंगू का, अगर आप अर्बन एरिया में जाओ डेंगू बहुत प्रिवलेंट है, कॉमन है, तो आपको पता है कि डिजीज बर्डन है, तो आप अपनी इंटरवेंशन उस तरह से प्ले करोगे, है ना। जो भी आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम के कंसल्टेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके MPW मेल वर्कर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे डेटा लेने के लिए कि हाँ डेंगू कितना फैला है, क्या है, कितने लोगों को मेडिसिन मिली, है ना, कितना कंट्रोल हुआ, ठीक है। सो ये क्या करता है, मोबिलिटी डेटा आपको आपके डिजीज लोड को डिस्क्राइब करता है। दूसरा, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लिनिकली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक मोर्टेलिटी डेटा विच ओनली शोज डेथ रेट। मोबिलिटी डेटा आपको क्या करेगा, ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा अबाउट पेशेंट हेल्थ इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ देयर इलनेस, सिम्टम्स एंड डेमोग्राफिक, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में, किस डेमोग्राफिक मतलब किस एरिया में, ठीक है, और किस में ज्यादा आ रहा है, किस एज ग्रुप में, ये सारे डेमोग्राफिक में आता है, ठीक है। सो दिस डेटा इज मोर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एंड कैन गाइड मेडिकल रिसर्चर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो किसी एक पर्टिकुलर जगह से डेंगू के केस ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पे जाके आप इंटरवेंशन दोगे, ठीक है। एक सिनेरियो देती हूँ सभी को, अगर किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया से बहुत सारे डेंगू वाले केसेस आ रहे हैं तो जाके आप वहां पे क्या इवैल्यूएट करोगे? एनीवन, कोई भी ट्राई कर सकता है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैम रीजन बाय, ठीक है। और मैम हाइजीन चेक लाइक वाटर कूलर, फिलिंग ऑफ वाटर डैम्स। हाँ, नाउ यू आर राइट, है ना, कि वहां पे क्या कंटेमिनेटेड वाटर है, यहाँ पे वो मस्कीटो जो है वो ब्रीड कर रहा है ना, कितने वहां पे पाइप्स हैं, क्या एरिया है जहाँ पे कितने लोग फैमिलीज को वो क्यों हुआ, है ना, उन फैमिलीज को और दूसरी फैमिलीज में वो क्यों फैल रहा है ना, उनको जाके आप वहां पे इंटरवेंशन करोगे। क्या इंटरवेंशन करोगे डेंगू में? डेंगू के लिए आप लोगों को क्या समझाओगे? जो भी रुका हुआ पानी है, आपके कूलर है जैसे कि आप बोल रहे थे, उसको साफ करना है, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, कोकोनट शेल्स वगैरह, है ना। जो भी आपके वाटर है, वाटर टैंक्स, उनको कवर करके रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं होने चाहिए फ्ली के लिए, ठीक है। दूसरा, केमिकल कंट्रोल करोगे। आपने देखा होगा वो मोटर बाइक में आके इस समय वो मलेरिया विभाग वाले बहुत सारे, या ये डेंगू NVBDCP जो प्रोग्राम होता है वहां के विभाग वाले पूरा धुआं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, है ना, मतलब वहां पे। दूसरा, मिट्टी का तेल, आप जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि स्टेगनेंट वाटर है, यहाँ पे दोबारा जम सकता है, वहां पे बोल लो कि यार मिट्टी का तेल डाल दो, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड सरफेस हो जाता है, वहां पे वो ब्रीड नहीं कर पाती, मस्कीटो जो होती है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाती। दूसरा, आपने जाके वहां पे मस्कीटो रिपेलेंट या नेट वगैरह भी कुछ ऐसा बोल सकते हो कि अपना विंडोज बंद रखिए, पूरे कपड़े पहनिए, है ना। तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ चलो अब मुझे बताओ, हॉस्पिटल एडम वाले क्या करेंगे? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं डेंगू के, आप क्या करोगे? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ये क्यों पढ़ रहे हो? मोबिलिटी डेटा, एनीवन फ्रॉम BHA MHA? See clarity of case, मैम। ओके, क्लैरिटी ऑफ केस, लाइक हम प्रोपोर्शन लेते हैं कि यस मैम, कि बहुत सारे लोग आते हैं उनको प्रिवेंशन के लिए, और किसको जो है ज्यादा हमें मतलब इन डेंजर कौन है, किसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीजों के लिए हम जो इसको वेरी गुड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और आप क्या प्लान करोगे? मतलब मैम बेड और जो है सप्लीमेंट्स की, मतलब हमारे यहाँ कितने रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को लेके।
मैंने कहा था ना बेड कितने आपके पेशेंट बेड का रेशियो है ना, डॉक्टर्स, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत ज्यादा एकदम से बहुत सारे केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो उतनी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल पे, है ना। तो उसके लिए आपको पता है कि हाँ अब हमारा बरसात शुरू हो गई, हमें इस तरह से प्लान करना है, कभी भी इस एरिया के हमारे पास पेशेंट आएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल को फोन भी करना होता है। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्टिकुलर एरिया से हमारे पास इतने पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना, ताकि वहां पे वो लोग क्या करें, जाके वो जो क्या बोलते हैं जितनी भी मेडिसिन हैं उनका छिड़काव करें, और वहां पे लोगों को जाके उनको बोल के आए कि आप कपड़े अच्छे से पहनिए, पानी ना रुकने दें। तो ये एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। हो सकता है कि उस सोसाइटी या उस अर्बन एरिया के पास कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर केसेस ज्यादा आते हैं तो उनका होता है कि वो एनवीबीडीसी डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं पर्टिकुलर एक एरिया से, है ना, अर्बन एरिया से। तो अगर आप अपने हॉस्पिटल में हैं और यू आर हेल्थ प्रोफेशनल, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप रेडी रहो पूरा, आपके पास सारा मेडिसिन स्टॉक होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको पता है आप इस एरिया में, अर्बन एरिया में हो, सेमी अर्बन में, जहाँ पे केसेस आएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए, आपके पास जितने भी आईवी फ्लूइड जो भी लगाना है वो रेडी होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए आप ये पढ़ रहे हो। ठीक है, सो आपका, चलो ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लिनिकल आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, इट इज अ फाउंडेशन फॉर एटियोलॉजिकल स्टडीज, मतलब जो आपका मॉर्बिडिटी डेटा होता है, इट इज अ क्रिटिकल इन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज कंट्रोल, लाइक ट्रैकिंग डिजीज पैटर्न, हेल्प इन इवैल्यूएटिंग वेदर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लाइक वैक्सीनेशन, सैनिटेशन इनिशिएटिव आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट. If the disease rates are declining, the program is like successful. If not, changes may be needed. बहुत बार हम लोग कोई प्रोग्राम प्लान करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होता, फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो दे आर नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंस, यूज ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज मोबिडिटी में आगे इंसिडेंस और प्रिविलेंस आता है, ठीक है। इंसिडेंस, यूज ऑफ इंसिडेंस, प्रिविलेंस एंड यूज ऑफ प्रिविलेंस, उसके अलावा एक और आपका चैप्टर मैं लूंगी, ठीक है। प्लीज आप इसे पढ़ के आइए, और मैं कल सिनेरियोज लेके आऊंगी और आप लोग मुझे आंसर करोगे। क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज 8:30 पे ज्वाइन, 8:30-35 या अब आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है सबको, तो प्लीज आप 8:30 ही ज्वाइन कीजिए।